Today we are going to study the chemical calculations. Chemical calculations are very important in chemistry, whether you are working at an industry or in a research laboratory, or even you are doing any simple experimental work in your academic laboratories. So chemical calculations are very important. You can see on this title page some medicines, food materials, and a monogram of Pakistani standards. So every country has some standards about different products, whether these are the food products or any other industrial products or pharmaceutical products. हम different laboratories में work करते हैं. So in natural product laboratory, we isolate different materials from the natural resources. So the natural product can determine the amount of compounds in the given sample of the plant, fungi, and any other natural resource. You know that vitamin C is present in all the citrus fruits, oranges, lemon, even it is present in chili and mangoes as well. But how much vitamin C is present and what is the ratio of vitamin C as compared to different mango and the oranges and oranges with the lemon? So if you want to see the quantity of vitamin C per gram of the food material, then definitely you need to calculate something during your research. If you're working in a manufacturing industry, just like this is the paint industry, then a chemist working over there, he must know how much different pigments and other components should be added to the batch production of a paint. तो किसी भी इंडस्ट्री में अगर हम कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमें ज़रूरी है कि हमें मालूम हो कि उसको रेगुलेट करने के लिए क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को रेगुलेट करना है हमें तो कौन कौन से कंपोनेंट्स किस क्वांटिटी में ऐड किए जाने चाहिए. तो डेफिनेटली इससे पहले यानी हम जब कभी भी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू करते हैं, तो उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि उसके लिए हमें कितनी प्रोडक्ट गेन करने के लिए कितना रिएक्टेंट यूज़ करना होगा और कौन कौन से रिएक्टेंट किस रेशो के साथ यूज़ करना होंगे. कोई कलर डेवलप करना है तो उस कलर यानी उसके जो मुख्तलिफ शेड्स हैं उनके लिए किस क्वांटिटी में कौन सा पिगमेंट ऐड करना है, क्या रेशो होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी फिर केमिकल कैलकुलेशन हमें इन्वॉल्व करना पड़ जाती है. A food chemist wants to regulate the food product so that the quality of the product can be maintained. So even हम इस में ये भी मालूम कर सकते हैं कि whether the meat is fresh or not, because a purification process um, start when you slaughter an animal. So certain chemicals are produced over there. So the quantity of those components can be used to determine the to know whether it is fresh or not. Similarly, for other materials, we can a food chemist use different chemical calculations. Whether this is the egg yolk, egg is fresh or 1 week old, 2 days old, whatever. And if any hormone or antibiotic is there or any other material is there with the food, आपको मालूम है कि चिकन वगैरह जो यूज़ होती है या डिफरेंट टाइप्स का मीट है तो उसमें एनिमल्स बाज एनिमल्स यानी कि जब उसको रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो वो इंजेक्शन वगैरह भी लगा रहे होते हैं, हार्मोन्स दे रहे होते हैं. तो उसे चेक करना है कि क्या क्वांटिटी है. अभी हालिया एक रिपोर्ट आई थी कि जितने भी हमारे ये जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, तो इन मिल्क प्रोडक्ट्स में क्या है कि हैवी मेटल्स की क्वांटिटी ज़्यादा फाइंड की गई. तो अब ये जो मालूम हो तो कैसे मालूम होगा, यकीनन जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर केमिस्ट हैं जिन्होंने इसको मॉनिटर किया होगा तो यकीनन केमिकल कैलकुलेशंस भी की गई होंगी. तो केमिकल कैलकुलेशंस बहुत ज़रूरी हैं. ख्वाह आप किसी अ, किसी एकेडमिक लेबॉर्ट्री में वर्क कर रहे हैं यानी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, या फिर आप किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, हर सूरत में आपको केमिकल कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है हमेशा. इसमें कोई दूसरी राय नहीं है. हमारा यहाँ पे ये सीरीज़ जो है एक से ज़्यादा लेक्चर पर मुश्तमिल है. In lecture 1 and other lectures, we will cover all these topics.
What is relative atomic mass? Very basic concept that you have studied in your school grade. Molecular mass, and you will study and you will learn how to calculate the percentage of mass of an element in a compound when given appropriate information. Describe mole and Avogadro's number. We will cover it A, B, and C in lecture 1, then D in lecture 2. Determine moles and number of particles from relationship between Avogadro's number and mole. It will be covered in lecture number 2. And you will perform stoichiometric calculations with balanced chemical equations using molar and representative particles, mass and volume of gases. So you will cover these in lecture number 3. Identify the limiting reactant in reactions to calculate the maximum amount of product and the amount of any unreacted excess reactant. It will also be covered in lecture 3. Calculate theoretical yield, actual yield, and percent yield from given information. It will also be covered in lecture 3. And it is also to calculate the theoretical yield, percent yield, and by using the balanced chemical equation. So now come to some topics which should be revised. Atom, this is the basic concept जो कि आप अपने school grade से पढ़ते आ रहे हैं. Atom is the smallest unit of the particle of an element which possesses its all properties. यानी एक एटम जो है उसमें उस एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं. वो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है कोई एलिमेंट को. आपको मालूम है कि क्योंकि मैं साथ में उर्दू भी लेके चलूँ, हमारी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो उर्दू में, स्टूडेंट की बहुत बड़ी तादाद उर्दू में भी जो है एग्जाम दे रही होती है. तो एलिमेंट को उर्दू में कहते हैं उनसर, और एटम को उर्दू में कहते हैं जौहर. लेकिन अब इतनी खालिश उर्दू हम यूज कर नहीं रहे होते हैं, तो हम तो वर्ड एटम का ही यूज करेंगे और एलिमेंट का यूज करेंगे, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए. सो atom is the smallest unit or particle of an element which possesses all its properties. This is one of the view of atom that you have learned in your school grades. This is the nucleus, and these are the shells where electrons are revolving. These blue dots are electrons, red dots are protons, and these gray dots are neutrons. So nucleus is a collection of protons and neutrons. ये जो डायग्राम है ये एटॉमिक डायग्राम, एक्चुअली एटम अब इस तरह से होता नहीं है. फर्दर आप लोग पढ़ेंगे भी आगे कि atom has a central nucleus and electrons are oscillating over there. There are certain energy levels. So this is the representation of an atom. The maximum density of electron is near the nucleus. You will study this in detail in second chapter atomic structure. So फिलहाल यही रहने दीजिए कि हम एटम को ड्रॉ तो ऐसे ही करेंगे. इट इज कंसिडर्ड द बोहर मॉडल, लेकिन याद रखिएगा बोहर मॉडल भी फेल हो चुका है. बहरहाल एटम में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स है, एंड न्यूक्लियस कंप्राइजेस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. एटम का मेजर मास उसके न्यूक्लियस में है, जो कि डिपेंड कर रहा है, मुनहसिर है उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन पर. इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व और ऑसिलेट अराउंड द न्यूक्लियस in their energy levels and sub energy levels. फिर वही दोबारा मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि एटम का मास उसके न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है, क्योंकि the massive particles are protons and neutrons, and they are confined or they are present at the center of the atom, that is called nucleus. If you want to study the basic knowledge of atomic structure at a school grade, then you can click this link and you will study the atomic structure. This video covers the topics
of O-level chemistry as well as matriculation, ninth and matric chemistry, school grade chemistry in different Pakistani boards. Now the atomic number is the number of protons present in an atom, while the mass number is the sum of the number of protons and neutrons present in an atom. And this is the formula that mass number is equal to protons plus neutrons. So you can see here the mass numbers of different elements. I have mentioned only certain isotopes, although every element occurs in different isotopes. So hydrogen, the most abundant isotope of the hydrogen is protium, which has no neutron in its nucleus and only one proton. So the 0 plus 1 is 1. 1 is the mass number as well. Helium, the common isotope of helium, the most abundant isotope of helium, has 2 neutrons and 2 protons. So its mass number is 4. Similarly, you can add these number of neutrons and protons to get the mass number. The most common isotope of magnesium has 12 neutrons in its nucleus along with the 12 protons. So its mass number is 24. So you can see all of these. Relative atomic mass. Remember that relative atomic mass, but simply we say atomic mass. The atomic mass or mass number एक बात नहीं है, दो अलग-अलग terms हैं. बात औकात atomic mass और mass number same भी हो सकता है, लेकिन actually by definition and in our calculation, you will see that these are the two different terms. Relative atomic mass. अगर मैं इसकी उर्दू लिखूं तो ये हो जाएगा एटमी कमियां. The relative atomic mass that is represented by AR. R यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के तौर पे लिखा जाएगा, जैसे हम फॉर्मूला में लिखते हैं ना H2O लिखते हैं, ये 2 को ये सबस्क्रिप्ट होती है. तो स्टैंडर्ड सिंबल तो यही है, क्योंकि अगर आपने इस तरह लिखने के बजाय AR इस तरह से लिखा तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि जी ये आर्गॉन है. तो बहरहाल वी शुड केयर अबाउट दिस. अच्छा जी. So the relative atomic mass of an atom of an element is the ratio of the average mass per atom of an element, per atom, single atom, of an element from a given sample to one of the 12 the mass of the carbon 12. You think about it. Suppose if one carbon atom is having mass of the 12, so if you divide it into 12 equal parts, then every part has a mass 1. So the relative atomic mass of an element is the average mass of one atom of the element divided by 1/12 part of the carbon 12. Or in other words, you can say 1/12 of the mass of the carbon 12. So initially, when scientists developed atomic masses, Daltons, Berzelius, Avogadro, and many other scientists who developed the relative atomic masses, this concept was developed by them. So they proposed different laws, law of reciprocal proportion, and law of constant composition, and some other laws. उन लॉज की बेसिस पर, उन कवानीन की बेसिस पर ये रिलेटिव एटॉमिक मासेस कैलकुलेट किए गए थे. And today we have mass spectrometry to determine the relative atomic masses of different atoms and their isotopes, different elements and their isotopes. Gram atomic mass is also the similar term, but here we use the gram as a unit. So if the atomic mass of an element is expressed in gram, is called gram atomic mass. आप इसे next slide में देख भी लेंगे कि, for example, if the relative atomic mass of carbon is 12, AMU is the unit for relative atomic mass. Relative atomic mass is represented in the unit AMU. AMU. But
The gram atomic mass is represented in gram. So the relative atomic mass of carbon is 12 AMU, while the gram atomic mass of carbon is 12 gram. नेक्स्ट स्लाइड में आप देख भी लीजिए, ये तो पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तो एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं, और यहाँ पर ये जो फ्रैक्शंस में है ज़्यादातर ये एटॉमिक मासेस हैं, इनकी वैल्यू एमयू में। अलबत्ता जो यहाँ पर ब्रैकेट में गिवन वैल्यूज हैं ये इनके किसी पार्टिकुलर अबंडेंट आइसोटॉप का मास नंबर है, और फिर यहाँ पे हम मास नंबर को एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा दोनों सेम टर्म नहीं होती। ओके, अब इस स्लाइड में देख लीजिए कि क्या डिफरेंस है इसमें। रिलेटिव एटॉमिक मास, द न्यूमेरिकल वैल्यू इज सेम बट यूनिट इज डिफरेंट। और यहाँ पे सिर्फ यूनिटी डिफरेंट नहीं है, ये मत समझें कि 1 एमयू और 1 ग्राम एक बात है, ये दो अलग चीज़ है। इसको हम मोल के कॉन्सेप्ट के साथ लेक्चर नंबर 2 में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री है, ये आप लोगों ने स्कूल ग्रेड में कवर किया हुआ है। तो अगर इन्हीं एटॉमिक मासेस को, ये जो आपको एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं, अगर इन एटॉमिक मासेस को हम एमयू के बजाय रिप्रेजेंट कर दें ग्राम्स में, तो फिर ये ग्राम एटॉमिक मासेस कहलाते हैं। फिलहाल मैं आपको सिर्फ यहीं तक रखूंगा, मैं इसकी डिटेल में भी नहीं जा रहा कि ये बराबर क्यों नहीं है। ओके, यानी अगर आप ये सोचते हैं कि 19 AMU इज इक्वल टू 19 ग्राम, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। मास नंबर जो है वो होल नंबर है, जबकि रिलेटिव एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास जो हैं ये होल नंबर नहीं होते हैं, ये फ्रैक्शन में होते हैं ज़्यादातर। अभी आपने पीरियड टेबल में देख भी लिया, लेकिन क्यों? तो मास नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर बिकॉज इट इज द सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड दे कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। भाई न्यूट्रॉन होगा तो दीज आर द पार्टिकल्स, आधा पार्टिकल तो नहीं होता ना, आधा न्यूट्रॉन तो नहीं होता है। भाई होगा तो एक न्यूट्रॉन होगा या जीरो, यानी नहीं है वहां पे न्यूट्रॉन, जैसे कि प्रोटियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटॉन या तो होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो एक प्रोटॉन होगा, दो होगा, तीन, ये तो नंबर्स में होंगे ना, पार्टिकल्स नंबर्स में होते हैं, इसके फ्रैक्शन तो नहीं बन सकते। तो इस वजह से मास नंबर तो हमेशा ही होल नंबर होगा। सो मास नंबर्स आर ऑलवेज अ होल नंबर बिकॉज mass number is the sum of the protons and neutrons, they cannot be in fraction. The relative atomic mass of an element are not whole number। ये अलग बात कि हम अपनी कैलकुलेशन में इसको राउंड ऑफ करके होल नंबर में ले आते हैं, और कुछ जगहों पे हमें उसे होल नंबर में रखना पड़ता है, हम उसे राउंड ऑफ नहीं करते हैं। लेकिन जैसे 12.01, if you see the accurate value of atomic mass of carbon, see here, the accurate mass of nitrogen is 14.007, but we round it off to 14. Oxygen is its relative atomic mass is 15.999 mu, but we take it as 16. Carbon is 12.011, but we round it off as 12. Boron is 10.811, लेकिन इसको भी हम राउंड ऑफ करके 11 ही लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि उससे हमारी कैलकुलेशन में एक्यूरेसी नहीं होती है। एग्जाम के पॉइंट से तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर हम कहीं पे रियल कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, बीइंग एन एनालिटिकल केमिस्ट, तो फिर वहां पर हमें सम टाइम एक्यूरेट मासेस लेना पड़ते हैं, यानी फिर हम फ्रैक्शन में ही लेंगे लाजमी तौर पर। लेकिन हमारे जो स्कूल और कॉलेज लेवल की कैलकुलेशन राउंड ऑफ करके भी हमारा काम चल जाता है। तो फ्लोरीन 18.998, तो इसको हम 19 लेते हैं आमतौर पर कैलकुलेशंस में। सिमिलरली 26.982, तो इसको हम जो 27 लेते हैं। लेकिन क्लोरीन को हम 35.5 ही लेंगे, 35.45 को हम 36 नहीं कर सकते, या 35.453 को 35 भी नहीं ले सकते हैं। सिमिलरली कॉपर अगर देखें तो 63.546 है। अच्छा, ओ लेवल में यानी कैम्ब्रिज में, ओ लेवल में सिर्फ, मैं ए लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ओ लेवल में तो इसको हम 64 ले लेते हैं। इसी तरीके से मैट्रिकुलेशन सिस्टम में भी, जो भी पाकिस्तान और इंडिया के मैट्रिकुलेशन सिस्टम है, उसमें भी हम इसको 63.5 ना भी लें तो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन इंटरमीडिएट क्लासेस में और ए लेवल में बेहतर है कि इसको आप 63.5 ही लें, बल्कि ए लेवल में तो लाजमी है।
और बहरहाल कैम्ब्रिज में हमें प्रॉब्लम इसलिए भी नहीं होती कि वहाँ पे टेबल गिवन होता है, वहाँ पे जो भी वैल्यू है, तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि किसको राउंड ऑफ करना है, किसको राउंड ऑफ नहीं करना है। लेकिन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को, हमारे एफएससी के स्टूडेंट को ये मेमोराइज करना होगा। लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि उनके पेपर में भी गिवन होते हैं एटॉमिक मासेस आपको याद नहीं करना होता है। तो यस, तो हम ये देख रहे थे कि रिलेटिव एटॉमिक मास की जो वैल्यूज हैं ये होल नंबर नहीं होती हैं, लेकिन इनको हम होल नंबर बना सकते हैं राउंड ऑफ करके, जैसे हमारी कैलकुलेशन में बहुत ही इग्नोरेबल, यानी काबिल नज़रअंदाज इफेक्ट आता है सामने। रीज़न क्या है? रीज़न है कि क्योंकि एक से ज़्यादा आइसोटॉप्स होते हैं, तो हम उनकी परसेंटेजेस के लिहाज से एक एवरेज लेते हैं। मैं आगे इसको कैलकुलेशन में शो भी करूंगा, और इसके लिए मेरी एक सेपरेट वीडियो भी मौजूद है आइसोटॉप्स के नाम से। सम एआर वैल्यूज आर केप्ट इन डेसिमल नंबर्स, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्लोरीन और कॉपर के केस में हमें इनको डेसिमल वैल्यू में रखना पड़ता है। द रिलेटिव एटॉमिक masses of some elements such as chlorine are not rounded to whole number but are kept in decimal number because more than one isotope of such elements occur in abundance. Abundance means यानी कि अगर ऐसा है कि कोई आइसोटॉप 99% प्रेजेंट है या 90% प्रेजेंट है और दूसरा 10% है, तो वो 10% वाले को इग्नोर करके हम काम चला सकते हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक 75% हो, जैसे कि क्लोरीन में आप देख रहे हैं कि क्लोरीन का आइसोटॉप विच हैज मास नंबर 35 is about 75%, not exactly 75, it is 74 point something. And the isotope of chlorine, chlorine 37, is about 25% abundant. So 25% is a appreciable percentage. That's why when you calculate the average of these isotopes, it would be 35.5. And the similar case is for copper that I have shown you in the periodic table as well. ये अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया ही था, तो आप ये दोनों केसेस दोबारा भी देख सकते हैं। तो 63.5 एंड 35.5, तो इनको राउंड ऑफ करना मुनासिब नहीं है। ओके, तो कीपिंग दिस माइंड हम आगे चलते हैं कि अब ये नेचुरल अबंडेंस से हम रिलेटिव एटॉमिक मासेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये चीज़ें हम ओ लेवल केमिस्ट्री में और स्कूल लेवल केमिस्ट्री में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इसमें होता क्या है कि to calculate the relative atomic mass, we follow the method, multiply each isotopic mass. Isotopic mass means the mass of the individual isotope by its percentage of abundance and percentage in which it is present in the nature, and then add the other isotope as well, and then divide by 100 because we are taking percentages here. अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शन ले रहे होते तो फिर हमें 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। खैर, हम उस कैलकुलेशन की डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर से आपको नजर आ रहा है, ए, this A is मास नंबर, और मास नंबर हर आइसोटोप का अलग होता है। एंड AR would be the relative atomic mass, जो कि आप इस पूरी कैलकुलेशन के बाद you will obtain it। तो ये A भी क्या है? ये दूसरा आइसोटोप का मास नंबर। एंड परसेंटेज मीन्स the natural abundance, this is, and this is the natural abundance। तो आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का दो आइसोटोप्स बहुत कॉमन है। यहाँ पे कैलकुलेशन की इसको सिंपल रखने के लिए हमने यहाँ पर दो ही आइसोटोप को कैलकुलेट किया है। तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है 35.5। सो एक्चुअली दिस 35 इज द मास नंबर of one isotope, and this is the mass number of another isotope, and these are the natural abundances। So you can try it by yourself, your answer would be 35.5। Similarly, if you want to calculate
relative atomic mass of neon, then you can see this is the mass number of one of the isotope, mass number of another isotope, and this is the mass number of third isotope. And every isotope has different percentages. तो आप इसकी कैलकुलेशन भी देख लीजिए. ये 20 मल्टीप्लाई बाय 90.9, 21 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 22 मल्टीप्लाइड बाय 8.8. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम रिलेटिव एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करते हैं. तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया हमारे पास 20.2. Similarly for boron, here we have given two isotopes. One has a mass number of 10 and its percentage is 18.7. So 10 multiplied by 18.7. Another has mass number of 11 and percentage is 81.3. So after calculation, you will get this answer 10.8. और आप अपनी calculations की simplicity के लिए इसको 11 ले सकते हैं. Bromine, it is an interesting case. ब्रोमीन के दो आइसोटोप बहुत ज्यादा कॉमन है और दोनों ही ऑलमोस्ट 1:1 के रेशियो से नेचर में मौजूद है, 50% ईच. तो देख सकते हैं आप कि इन दोनों आइसोटोप का जो एवरेज है वो एग्जैक्टली 80 आ रहा है. अगर हम रियल परसेंटेजेस लें और इसका दूसरा आइसोटोप्स को भी कंसिडर करें तो 79 पॉइंट समथिंग आएगा, बट इट्स ओके. अच्छा, ये बता दूं कि ये कैलकुलेशन ओ लेवल में तो ओ लेवल का तो पार्ट है, लेकिन ये कैलकुलेशन 9 मैट्रिक में भी है. ये ए लेवल में भी हमें कैलकुलेशन करने को दी जा सकती है और इंटरमीडिएट में हमें आना चाहिए, लेकिन आमतौर पर इस तरह के न्यूमेरिकल्स गिवन नहीं होते हैं, न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है ये. अच्छा, अब आ जाइए मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल भी आप स्कूल ग्रेड में पढ़ चुके हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस that comprises different atoms of an element and usually consists of two or more chemically combined atoms. And these atoms could be similar. For example, oxygen molecule has both the oxygen atoms, but they could be different. Water molecule has one oxygen atom and two hydrogen atoms. Methane molecule has four hydrogen atoms and one carbon atoms. So एक कार्बन और चार हाइड्रोजन मिलके मीथेन मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस करते हैं. अब ये जो मॉलिक्यूल हैं ये एज अ सिंगल एंटिटी एग्जिस्ट करते हैं नेचर में. यानी ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन अलग, ये ऑक्सीजन अलग हो जाए और ये ऑक्सीजन अलग हो जाए, ये अलग नहीं होंगे, सेम रहेंगे. यानी अगर मैं इसको और ज्यादा सिंपल डायग्राम बनाऊं तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं. ये दो मॉलिक्यूल, दो एटम आपस में ज्वाइन होकर ये इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, नेचर में मौजूद है. नेचर में ऑक्सीजन इसी फॉर्म में मौजूद है. अगर आप यहाँ वाटर को इसी तरह से शो करना चाहें तो क्या होगा कि आप सेंट्रल एटम को डिफरेंट करने के लिए, डिफरेंट जाहिर करने के लिए इसको फील्ड सर्किल बना लीजिए और उसके साथ जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको एम्प्टी सर्किल बना लीजिए. उल्टा काम कर लेंगे, इसको डार्क कर दें और इसको जो एम्प्टी छोड़ दीजिए. तो ये एक मॉलिक्यूल जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में. इसी तरीके से यहाँ अगर हम मीथेन की बात करें तो ये सेंट्रल एटम हो गया कार्बन, और इसकी सराउंडिंग में हाइड्रोजन एटम्स आ गए. ये चार इसमें हाइड्रोजन एटम्स हो गए और ये एक कार्बन एटम हो गया. तो ये भी इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है. ऐसा नहीं है कि किसी कंडीशन में जाके ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाए. अगर सेपरेट हो गए तो फिर वो मिथेन नहीं रहेगा, वो तो इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा. इस तरह से ये डिसोसिएट हो सकता है मॉलिक्यूल, लेकिन फिर वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं रहेगा वो. ठीक है. तो मॉलिक्यूल के लिए जरूरी है कि वो अपनी इसी फॉर्म में, इंटैक्ट फॉर्म में एग्जिट भी करता हो. तो हमने अपनी अर्ली क्लासेस में ओ लेवल में और क्लास 9 स्कूल ग्रेड में हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, नोबेल केसेस, तमाम नोबेल केसेस मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि वो अपनी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. आपको मालूम है कि ऑक्सीजन अपनी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा. ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव, इट कंबाइंस विद अदर एटम्स व्हिच आर अवेलेबल. तो मॉलिक्यूल होने के लिए ये जरूरी है कि वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो. ठीक है. तो अब मॉलिक्यूल का जो मास है वो मॉलिक्यूल रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा, लेकिन बाय डेफिनेशन बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखी थी वैसे लिख सकते हैं. लेकिन इसकी आसानी ये है कि
इट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। यानी आपको अगर एटम्स के रिलेटिव मासेस मालूम है तो आप उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन वैसे ही है जैसे इसकी एटॉमिक मास की थी। सो दिस इज द एवरेज मास ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 इज कॉल्ड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला भी सेम है, बस फर्क ये है कि दिस इज फॉर मॉलिक्यूल। वहां जो आपने डेफिनेशन देखी थी एलिमेंट एटॉमिक मास के लिए, वहां पे यहाँ पे वर्ड था एटम और यहाँ पे वर्ड था एलिमेंट। बट हियर द वर्ड मॉलिक्यूल एंड सब्सटेंस, याद रखिएगा सब्सटेंस का मतलब सब्सटेंस कैन बी एन एलिमेंट एंड इट कैन बी अ कंपाउंड। अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 के लिए, O2 इज अ मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे एलिमेंट का वर्ड आएगा। लेकिन अगर हम मीथेन के लिए बात करेंगे तो मीथेन के लिए यहाँ पे तो वर्ड मॉलिक्यूल होगा, वही, क्योंकि है तो मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पे सब्सटेंस के बजाय सब्सटेंस क्या होगा वहाँ पे, कंपाउंड। यानी सब्सटेंस कैन बी एन एलिमेंट और कंपाउंड। आपने ये भी देखा है कि आयनिक कंपाउंड्स भी होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स भी होते हैं। जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं आपने देखा कि यहाँ पे इनमें कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। हम तफसील से कोवलेंट बॉन्ड्स को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन और 9th क्लास में और ओ लेवल में आप लोग पढ़ कर आए हुए हैं कि कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। तो ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये यहाँ पे ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया बिकॉज दीज आर फॉर्म बाय शेयरिंग एंड द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड एग्जिस्ट एज सिंगल एंटिटी। तो कोवलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड इज वन ऑफ द आयनिक कंपाउंड। दिस इज द क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड। आपको मालूम होना चाहिए कि हियर क्लोराइड्स आर नेगेटिव, they have negative charge, and sodium are having positive charge. So actually सोडियम एटम और क्लोरीन एटम्स नहीं है, बल्कि ये सोडियम आयंस और पोटाशियम क्लोराइड आयंस है, ये सब आयंस हैं, ये भी आयन। फ्रंट पे ये नजर आ रहे हैं तो मैंने इन्हीं की बात की, इन्हीं को मेंशन किया है। सो देयर इज एन अल्टरनेट नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन इन दिस क्रिस्टल, दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट। इसको हम अपनी फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करेंगे और चैप्टर नंबर 6 में भी, मेनली चैप्टर 6 में आएगा ये सॉलिड स्टेट के साथ। खैर, यहाँ पे जो मेरा मकसद है यहाँ पे आपको बताने का वो ये है कि आयनिक कंपाउंड्स दे कंप्राइजेस आयंस, कलेक्शन ऑफ आयंस व्हिच फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते जो हम फॉर्मूला लिखते हैं NaCl। NaCl is the empirical formula that shows the simple ratio. They do not exist as molecule. तो NaCl is just a formula, it is not a molecule. इस वजह से हम यहाँ पर अपनी मॉलिक्यूलर मास की टर्म यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम कहें कि जनाब सोडियम का एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास 23 है राउंड ऑफ करने के बाद, और क्लोरीन का 35.5 है, तो दोनों को प्लस करें तो ये आ जाएगा 58.5। तो जो 58.5 है ये इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं है, फॉर्मूला मास है। इसको हम मॉलिक्यूलर मास नहीं कह सकते बिकॉज आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल। उसके लिए टर्म मॉलिक्यूलर मास यूज करना सही नहीं है, तो उसके लिए यूज करेंगे टर्म फार्मूला मास। तो फार्मूला मास क्या है, फार्मूला मास ऑफ अ फार्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ 1/12। डेफिनेशन तो वही है जो हमने वहां पर पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे ये टर्म को समझना जरूरी है। अच्छा, एक बात और जहन में रखिएगा कि जब हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं तो यहाँ पे इसके लिए सिंबल लिखते हैं MR। ये R वैसे ही है सबस्क्रिप्ट के तौर पर। तो फार्मूला मास के लिए हम FR नहीं लिखेंगे, बल्कि फार्मूला मास के लिए भी MR ही होगा। लेकिन बस याद ये रखना है कि अगर आयनिक कंपाउंड है तो वहां पे MR का मतलब फार्मूला मास है, और अगर वो कोवेलेंट कंपाउंड है तो वहां पर MR का मतलब मॉलिक्यूलर मास है। ये जस्ट एज अ केमिस्ट आपको याद रखना है। ग्राम फार्मूला मास, जैसे ग्राम एटॉमिक मास है, आपने उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है। लेकिन फिर मैं बता दूं कि ग्राम फार्मूला मास और ग्राम रिलेटिव फार्मूला मास एक बात नहीं होती, दोनों में फर्क होता है, जिसको हम मोल के कॉन्सेप्ट के साथ बाद में देखेंगे। अब आ जाइए कैलकुलेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला मासेस ऑफ सिंपल कंपाउंड्स।
बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं दिए गए हैं इन स्लाइड्स में। हाउ इज एमआर डिटरमाइंड फ्रॉम AR ऑफ एलिमेंट? याद रखिएगा कि AR यानी रिलेटिव एटॉमिक मासेस तो आपको एग्जाम में दिए हुए होते हैं, कैम्ब्रिज में पीरियोडिक टेबल ही साथ में दे देते हैं, आखान बोर्ड में भी पीरियोडिक टेबल साथ में दे देते हैं, लेकिन हमारे मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट में पीरियोडिक टेबल तो नहीं दिया जाता है, लेकिन जो भी रिक्वायर्ड रिलेटिव एटॉमिक मासेस होते हैं वो पेपर पर, फर्स्ट पेपर पर ही, यानी जो आपका एग्जामिनेशन पेपर होता है उसके फर्स्ट पेज पर ही दे दिए जाते हैं ना। प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन द MR ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फिर याद रखिएगा कि एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन ये तो आपको गिवन होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो लिखा है 2 × 1 + 1 × 32 + 4 × 16, क्या है ये जो ग्रीन कलर से मेरे नंबर लिखे हुए हैं ये एटम्स की तादाद है उस मॉलिक्यूल में। सी 2 हाइड्रोजन एटम्स, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम्स, multiply by their relative atomic masses that you can find it from periodic table or given on the first page of the your examination paper. हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1 होता है, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इनको सम कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, फिर समेशन कीजिए, देन यू विल गेट 98। यहाँ पर हमने एक्यूरेट एटॉमिक मासेस नहीं मेंशन किए हैं, तो हमने राउंड ऑफ करके किया हुआ है। Similarly, this is for CH3COOH. What is this? This is the common name is acetic acid, and its IUPAC name is ethanoic acid. So इसका molecular mass भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे कि see the number of carbon atoms. One carbon is here, one carbon is here, so total 2 carbon atoms are there. Hydrogen 3 here, 1 here, 4, total 4 hydrogen atoms, and there are 2 hydrogen atoms multiplied by their relative atomic masses. Then you will get its molecular mass, that is 60. And remember that sodium carbonate is an ionic compound. It consists of 2 sodium ions and 1 carbonate ion. Okay, तो इसके लिए हमें क्या टर्म यूज करना चाहिए? Na2CO3 is the formula unit of sodium carbonate, and 106 is its formula mass, relative formula mass, if you are writing in AMU. मैंने deliberately जानबूझकर ये यूनिट शो नहीं किए, क्योंकि अगर आप इसे ग्राम एटॉमिक मास कंसीडर करें तो 106 ग्राम हो जाएगा, और रिलेटिव फार्मूला मास कंसीडर करें तो फिर इसका आंसर जो है 106 MU हो जाएगा। Similarly, for ammonium chloride, you can see here as many nitrogen, hydrogen, and chlorine are there. Multiply by their atomic masses, and finally you will get it. That is 53.5. अच्छा, ये फिर बताते चलेगा ये अमोनियम क्लोराइड भी एक आयनिक कंपाउंड है। यूरिया एंड अमोनियम सल्फेट, ये इज अमोनियम सल्फेट, सिमिलर केस। अब जो बार बार ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि जनाब ये जो है इसके नंबर ऑफ एटम्स हैं, 2 नाइट्रोजन है, ये जो 2 है ये यहाँ पे 1 है तो उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 1 2, 2 4 8, तो 8 हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है तो बस ये एक ही सल्फर होगा, 1, 4 ऑक्सीजन है, 4 ही रहे, तो ये 2 ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ होंगी उनको मल्टीप्लाई करेगा। तो MR of sodium carbonate, MR of ammonium sulfate is 132, and for urea it is 60. And in this table, some of the molecular masses are given. Why I'm saying molecular masses? See, these are the elements, but these elements exist as molecule. So we use the term molecular mass, and if you represent in gram, then these are the gram molecular masses.
and these are the compounds. They also exist as molecule. So we can use the term molecular mass for them as well, and gram molecular mass for their representation in gram. But remember that for the molecules from 5 to 8, water, carbon dioxide, methane, and sulfur dioxide, we can use the term formula masses. Why? Because these are the formula unit as well. और ये formula unit क्योंकि molecules की form में भी exist करते हैं, तो इस वजह से आप इसको molecular mass भी कह सकते हैं. तो इनके लिए कोई restriction नहीं है कि हम इन्हें formula mass नहीं कह सकते. We can say now the calculation of formula mass of hydrated compounds. Hydrated, you know, in certain molecules, in certain compounds, some bound water molecules are there which are called water of crystallization. So copper sulfate, blue copper sulfate, calculation shows that the crystals of copper sulfate possess 5 water molecules, 5 moles of water with 1 mole of copper. या यूं कह लें कि एक कॉपर के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं. तो बहरहाल, तो अगर ये आपको कहीं पर भी किसी फॉर्मूले में H2O डॉट H2O लिखा हुआ नजर आए, समझ जाइएगा कि ये बाउंड वाटर है जो उसको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देने के लिए आमतौर पे जरूरी होता है. तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म कहलाती है उस कंपाउंड की. तो कॉपर सल्फेट कुड बी इन हाइड्रेटेड फॉर्म और इन एनहाइड्रस फॉर्म, यानी जब उसके वाटर मॉलिक्यूल साथ में शामिल नहीं है, क्योंकि जब हम इसको हीट करते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म को, तो ये वाटर एवोपरेट हो जाता है वहां से, ये रिलीज हो जाता है. तो जब ये रिलीज हो जाएगा तो लाजमी सी बात है कि फिर ये कहलाएगा एनहाइड्रस. अच्छा जी, तो आप देखिए यहाँ पे दोनों में फर्क क्या है. सिंपल वही कैलकुलेशन है जैसे कि हम करते हैं कि एक कॉपर हो गया, ये कॉपर का एटॉमिक मास आ गया. एक सल्फर है और यहाँ पे सल्फर का एटॉमिक मास आ गया. 4 ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक मास आ गया. लेकिन ये जो वाटर है इसको भी तो कैलकुलेट करना है, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड. तो 5 टू जा 10, ये 5 भी दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है. 5 टू जा 10 हाइड्रोजन प्लस 5 ही ऑक्सीजन भी है इसके पास. तो 5 इंटू 16, फाइनली कैलकुलेट कीजिए तो आ जाएगा 249.6. जबकि एनहाइड्रस का क्या है कि यानी 5 वाटर मॉलिक्यूल के मास को माइनस कर दीजिए, यानी विदाउट वाटर मॉलिक्यूल आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आपके पास एनहाइड्रस फॉर्म का आ जाएगा. यानी वही वाटर ही तो माइनस हुए इसमें, बाकी तो देख लीजिए, ये देखें बिल्कुल सिमिलर है. यही पूरी वैल्यू तो यहाँ पर है. So there is no difference. But the only difference is the presence of water molecules. So if you will remove the water from there, then the formula mass becomes 159.6. ये 5 water molecules का जो मास है वो 90 ग्राम वो माइनस हो गया. Similarly, this is another hydrated salt that is called Epsom salt. In this Epsom salt, there are 7 water of crystallization. In anhydrous form, there is no water. And you can calculate similarly. 1 multiplied by 24.3. 24.3 is the isotopic mass of, not isotopic, relative atomic mass of magnesium. 1 is for sulfur and 4 is for oxygen. See, in both the hydrated form and anhydrous form, it should be anhydrous. Molecule of anhydrous. Okay. So this is the MR of anhydrous magnesium sulfate, and this is not the hydrated one. अभी फिलहाल जो है इसको हमने पूरा नहीं किया है, इसकी पूरी कैलकुलेशन देखिए. So 7 to the 14 hydrogen atoms multiplied by 1 its atomic mass. This 7 is also for oxygen, so 7 oxygen are also there. So finally you will get the MR of hydrated magnesium sulfate is 246.4, while the anhydrous form has the formula mass of 120.4. Now we will see the calculations of percentage of water and elements in hydrated compounds. See,
Determine the percentage of water in hydrated copper sulfate. We have already seen that the mass of hydrated copper sulfate is 250, or if you see the accurate mass, then it would be 249.6. And the mass of anhydrous copper sulfate is 160. So the mass of water is 250 minus 160, it is 90. So you can calculate the percentage of water. There is 90% water. So we multiply it with 100 divided by the mass of the hydrated one. So hydrated one is 250. So you will get the final percentage, that is 36%. अच्छा, यहाँ पे आप देखिएगा कि मैंने यहाँ पर एक्यूरेट मास नहीं लिया है, 250 लिया है मैंने, 249.6 नहीं लिया है। अगर मैं एक्यूरेटली लूँ तो फिर ये आपके परसेंटेज में थोड़ा सा माइनस ही ज्यादा हो जाएगी, 36 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इस वाली कैलकुलेशन में एग्जैक्ट 249.6 लिया है, तो बहरहाल दोनों तरह से कैलकुलेशन में माइनस इफेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ कॉपर इन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। सो इट इज 25.4%। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने उसी कॉपर सल्फेट में सल्फर को मालूम कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक्यूरेट वैल्यू लिए 249.6, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सल्फर इन कॉपर सल्फेट इज 12.9। यहाँ पर भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इप्सम सॉल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यानी 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यानी हमने इसमें से वाटर का मास कैलकुलेट कर लिया, कितना है 126। आप वैसे भी 18 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो वाटर का मास आ जाएगा। Percentage of hydrated copper sulfate, percentage of water in hydrated copper sulfate. No, this is not copper sulfate, magnesium sulfate. I'm sorry, hydrated magnesium sulfate. Similarly, here it is magnesium sulfate. यहाँ percentage of water in magnesium sulfate heptahydrate is 51.1%. Here we are going to calculate the percentage of sulfur in magnesium sulfate heptahydrate. So this is the very simple formula of finding the percentage, just like the percentage of your marks. 100 divided by formula mass, and here in numerator there would be the mass of that particular element in the compound. So this is 13%. Here some of the formula masses are given. Okay, and again you must know that AMU stands for atomic mass unit. In the next class we will next lecture we will study the concept of mole. Allah Hafiz.